जी हरिदा गोर निमाणी सड करे नी घरिया घर आओ सर पर मैथे आवना मरनो ना डरिया हूँ कबीर गर्भ ना कीजिए रंक न हंसिए कोई अजो सो नाव समुद्र में क्या जानो क्या होए सतनाम धन वाहिगुरु साहिब जी धनासरी बाणी भगत नामदेव जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद गहरी करके नींव खुदाई ऊपर मंडप छाए मार कंडे ते को अधकाई जिन तरण तर मून बलाए हमरो करता राम स्नेही काहे रे नर गर्भ करत हो विनस जाए झूठी देही रहाओ मेरी मेरी कैरो करते दुर्योधन से भाई 12 जोजन छत्र चले था देही गिरजन खाई सरब सोइन की लंका होती रावण से अधकाई कहाँ पहो दर बांधे हाथी खिन मह पही पराई दुर्वासा सो करत ठगोरी जादव ए फल पाए कृपा करी जन अपने ऊपर नाम देव हर गुण गाए दुर्वासा स्यों करत ठगोरी जादव ए फल पाए कृपा करी जन अपने ऊपर नाम देव हर गुण गाए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सम्मानयोग जुगों जुग अटल शबद ब्रह्म सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन पवित्र पाक हजूरी विच जुड़ बैठे सतसंगी जनों सतगुरां ने कृपा की गुरु चरणों दे विच जुड़ बैठन का सुभाग समा प्राप्त होया। आओ लड़ीवार भगतां दी उचारण की हुई अमृत बाणी जिसनों रल मिल के आपां पिछले दिनों तो विचार रहे हाँ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੇਧ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਅਤੇ ਛੂਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੰਜਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੱਭਣੀ ਹੋਵੇ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੁੱਖ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਗੁਨ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁਣੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਦਾ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਪਾਵਨ ਅੰਕ 692 ਅਤੇ 93 ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦਰਗਾਹੀ ਬੋਲ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਓ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੋਵਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੋ ਜੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰੋ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਹੈ ਮਸਕੀਨ ਦਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ, ਸਹਿਜ ਦਾ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਅਤੇ ਹਉਮੈ ਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਏ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਸਮਝ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਹਉਮੈ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋਕ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਮਸਕੀਨੀ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਹੈ, ਸਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਤ ਦੇ ਦੁੱਖ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਤ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੋਏਗੀ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ, ਇੱਕ ਹਉਮੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਹੰਕਾਰ, ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਹਉਮੈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਹਉਮੈ, ਮੈਂ ਦੀ ਵਰਤੀ। ਅਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਅਹੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਹਿਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ, ਰਾਜ ਪਾਟ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ, ਅਤੇ ਹਉਮੈ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ,
मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता, मेरी बराबर का कोई नहीं। और जो इस तन दे नाल कुछ प्राप्त करता है उसका यह हंकार करता है। पर ये दोवें वृत्तियां ही मनुखी जिंदगी के अंदर इसनूं हमेशा दुखी रखदियां हैं। जो सुखमनी साहब दे विच एक सलोक पढ़ते हो तो गुरु पिता महाराज गुरसिखो सानू समझाते ने, सुखी वसै मसकीनियाँ आप निवार तले, वड्डे वड्डे अहंकारियाँ नानक गर्भ गले। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਗਲਦਾ ਹੈ? ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਦ ਗੁਣ ਗਲਦੇ ਨੇ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਗਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਤੋਖ ਗਲਦਾ ਹੈ, ਸਬਰ ਗਲਦਾ ਹੈ, ਦਇਆ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਗਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਅਤ ਦਾ ਦੁਖੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਅਤ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਹਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਭਲਿਓ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਹਮਰੋ ਕਰਤਾ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ। हे ਬੰਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਸਨੇਹੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰਾ। ਅਸਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, जिसने साथ निभाना है, वो करता है, करतार है, परमात्मा है। जिहड़ा साडा साथ निभाउण वाला, साडा सारियां दा सब तो प्यारा जिहड़ा साथ है वो रब दा ते साडी आत्मा दा साथ है। होर साडा कोई इत्थे संगी नहीं है, साडा कोई इत्थे साथी नहीं है। जितने साथियों के विच असीं गलतान होए हाँ, इसनूं गुरुदेव पिता ने बाणी विच आख्या, मात पिता बनता सत बंधव इष्ट मीत अर भाई, पूरब जन्म के मिले संजोगी अंतः को न सहाई। कोई तेरा साथी नहीं है, तेरा साही नहीं है, तेरा मददगार नहीं है। इस करके भगत नामदेव जी कहते ने, भाई साडा असल प्यारा जिसने साथ निभाना है वो तो करतार है, वो तो परमात्मा है। इस करके कहने लगे, काहे रे नर गर्भ करत हो। नर का अर्थ है हे बंदियो, हे मनुखो, अपने शरीर का क्यों मान करते हो? ये शरीर नासवंत है, ये तो एक दिन नाश हो जाएगा। विनस जाए झूठी देही। इस नासवंत शरीर ने एक दिन विंस जाना। इसका गुमान क्यों करते हो? इसका हंकार क्यों करते हो? कबीर गर्भ न कीजिए देही देख सुरंग, आज काल तज जाओगे जो काचोरी भुयंग। मनुख अपने शरीर नूं वेख के बड़ा गुमान करता है। भगत जी कहते अज नहीं तो कल इस देही ने विंस जाना है। इस करके इसका हंकार क्यों कूड़ा मान करते हो? क्योंकि शरीर का मान व्यर्थ है, क्योंकि शरीर का कोई भरोसा, कोई विसा नहीं है। कोई चीज़ पक्की होवे उसका भरोसा किया जा सकता है, पर जिहड़ा है ही मिट्टी का भांडा है, इसका की भरोसा करांगे? फिर ये टुटन तो बाद कभी इकट्ठा भी नहीं हुंदा। सियाणे कहते कहें का भांडा होवे टाका लग जाता है, सोने का भांडा होवे दोबारा वो जुड़ जाता है, चांदी का भांडा जुड़ जाता है, पर यह मिट्टी का बनया होया भांडा जे खिलर जाए ना, इसनूं दोबारा जोड़िया नहीं जा सकता। इस करके भगत कबीर साहब ने आख्या, कहाँ विसासा इस भांडे का, इतनक लागे ठनका, आगे को कुछ तुल्हा बांधो क्या परवासा धन का। इस धन का की भरोसा है? इस देही ने विस जाना है। अहंकार क्यों करता है? हुण जदों साडे जीवन की गाथा भगत जी इत्थे समझा रहे ने सानू, आखन लगे मनुखी वृत्ति है और एक भुलेखा है कि इसनूं यही चेते नहीं रहा भी इस देही ने विंस जाना।
इस नूं इंज भुलेखा लगता भी मैं अजे नहीं मरना, अजे नहीं जाना, दूजे जा रहे हैं, होर मर रहे हैं। इस भुलेखे विच मनुख इस शरीर दे रहन वास्ते ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਗਹਿਰੀ ਕਰਕੇ ਨੀਂਵ ਖੁਦਾਈ, ਉੱਪਰ ਮੰਡਪ ਛਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਪੁਟਵਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਉਸਰਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਤਨ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਕਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਪੁਟਵਾ ਕੇ ਰਖਵਾਈਏ, ਪੱਕੀਆਂ ਰੱਖੀਏ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨੀਹਾਂ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਮਕਾਨ ਐਡਾ ਪੱਕਾ ਬਣਾਈਏ ਕਦੇ ਡਿੱਗੇ ਹੀ ਨਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਤਨੇ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਵਾਏ, ਨੀਹਾਂ ਪੁਟਵਾ ਕੇ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਮੰਡਪ ਛਾਏ ਸਨ। ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਗਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲਓ, ਸੰਗਾਲ ਲਓ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਓ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਗੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਘਰ, इसका बड़ा गुमान है मनुख नूं। पर सियाणे बंदे वो इस गल नूं समझ जाते हैं, इस करके ना महल माड़ियां दा भी कोई गुमान नहीं करते। अगली गल कीती, कहंदे मार कंडे ते को अधिकाई। मारकंडा एक ऋषि होया, और मारकंडा जिहड़ा ऋषि होया है, इस ऋषि की उम्र बहुत लंबी दसी जाती है। कहंदे कई सौ साल ये जीविया, पर सारी उम्र इसने कखा की कुली विच ही गुजारा किया। पूरी जिंदगी कखा की कुली विच उचारण की। मार कंडे ते को अधिकाई, जिन तरण तर मूंड बुलाए। तो कुछ विद्वानां दा मनना यह है कि ये अपने सिर ते कख ही रख के पूरी जिंदगी गुजार गए। इतना लंबा समा, इतनी लंबी उम्र, क्योंकि इन्हां महल माड़ियां दा की गुमान है। इस करके भगत जी कहते ने, कहते सिर उत्ते कख रख के, कखां दी कुली बना के जिहड़ा समा मिलिया सी, इतना लंबा समा भी उसने आसानी नाल गुजार लिया, क्योंकि उसनूं पता सी महल माड़ियां भी छड़ के चली जानियां, जितने मर्जी यतन कर लो, क्योंकि जदों समा आना ये सब कुछ त्यागना पैना है, सब कुछ छड्डना पैना। फिर अगले वचन कीते, आखन लगे मेरी मेरी कैरो करते दुर्योधन से भाई। 12 जोजन छत्र चला था देही गर्जन खाई। ना कौरवां दा ते पांडवां दा सब तो बड़ा इन्हां दा होया है कुरु राजा। ये उन्हां दियां संतानां ने कुरु राजे दी, जिस तो कुरुक्षेत्र बसिया होया। जिहड़ा कुरु राजा सीगा उस तो ही कुरुक्षेत्र बसिया होया। दिल्ली का पास का इलाका, क्योंकि नाम जिहड़ा है वो पुराने समय का है कुरु, क्योंकि इन्हां दा बड़ा सी कुरु। कैरो कुरु देश विच राज करन वाले राजियां दी संतान, इस करके कौरव कहलाए। जिहड़ी उन्हां दी संतान सी, उन्हां दे बच्चे सी, वो अगे जाके कैरव कहलाए। इन्हां विचों ही सन ये पांडव, इन्हां दे परिवार चों ही एको ही परिवार से पुराना। बाद दे विच अगे भरा हो गए, अगे संतानां हो गईयां, आपस दे विच वाद विवाद हो गया। इन्हां पांडवां ने जुआ खेडना शुरू कर दिता। जुए दे विच ये पांचाली नूं हार गए। पांचाली नूं हार गए। उस तो बाद गल ये हुई कि इन्हों ने बेनती की भी असी सब कुछ राजपाट हार गए, सब कुछ हार गए हाँ। तो पांडव कहन लगे भी तुसी सानू 5 पिंड दे दिओ, असी उत्थे अपनी जिंदगी कट लांगे।
ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਤੂੰ 5 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਈ ਦੀ ਨੋਕ ਜਿੰਨੀ ਥਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਪਾਂਡਵ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੌਰਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਰਯੋਧਨ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕੈਰੋ ਕਰਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਧਨ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਰਾਜਪਾਟ ਸਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ 5 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸੂਈ ਜਿੰਨੀ ਥਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਸੇ ਭਾਈ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਸੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਰਗੇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਰਯੋਧਨ ਵਰਗੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਪਾਟ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਰਾਜ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੂਏ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਰ ਕੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੂਈ ਜਿੰਨੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਰਵਾਂ ਦੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦਾ 12 ਯੋਜਨ ਛਤਰ ਚਲਾਤਾ, ਇੱਕ ਯੋਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 4 ਮੀਲ ਦਾ, ਅਤੇ 12 ਚੌਕ 48 ਮੀਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਤੁਰਦੇ ਸਨ। 12 ਯੋਜਨ ਛਤਰ ਚਲਾਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਛਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ, ਕੌਰਵਾਂ ਦਾ ਖਿਲਾਰਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਨਾ ਲੰਬਾ ਖਿਲਾਰਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਰਦੇ ਸਨ ਇਤਨਾ ਲਾਓ ਲਸ਼ਕਰ ਤੁਰਦਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ, ਇਤਨੀ ਦੁਨੀਆ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਸੰਸਾਰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੂਰਜ ਸੀ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਸੀ, ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਐਡਾ ਸੀ, ਗੁਮਾਨ ਵੀ ਐਡਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੌਰਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ, ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਲੋਥਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ, ਕਿਤਨੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਢੇਲ ਲੱਗੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਹੀ ਗਰਜਨ ਖਾਈ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਪਾਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, 1 ਲੱਖ ਪੂਤ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਤੀ, ਇੱਕੋ ਰਾਵਣ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਵਣ ਕਰ ਦਿਆ ਨਾ ਬਾਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੇ ਕੋਲ ਐਸੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਪਦਾਰਥ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਹੋਈ, ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਲੋਥ ਪਈ ਹੈ, ਉਸ ਲੋਥ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਹੀ ਗਰਜਨ ਖਾਈ, ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਗੁਮਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਿੱਧਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਖਾਧਾ। ਉਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਐਸੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਈ, ਅਹੰਕਾਰ ਐਡਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 48 ਮੀਲ ਤੱਕ ਲੋਕ ਤੁਰਦੇ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁਮਾਨ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਲਾਓ ਲਸ਼ਕਰ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਾਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਐਡਾ ਲਾਓ ਲਸ਼ਕਰ ਸੀ, ਐਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਰਾਜਪਾਟ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿੱਧਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਗਿੱਜਾਂ ਨੇ ਖਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਬ ਸੋਇਨ ਕੀ ਲੰਕਾ ਹੋਤੀ ਰਾਵਣ ਸੇ ਅਧਿਕਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੰਕਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਰਾਵਣ, ਅਧਿਕਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੱਡਾ ਬਲੀ, ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਹਰਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਹਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਵਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਸਿਰ ਨੇ। 10 ਸਿਰ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਆਣੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਿਰਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮਤ ਸੀ, ਜਿਤਨੇ 10 ਸਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੁੜ ਕੇ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਇਤਨੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ,
क्योंकि मनुखी सिस्टम दे विच नहीं है कि किसी एक बंदे दे 10 सिर लग जाण। जो एक परमात्मा की एक कृत है मनुखी जीवन, इस कृत विच ऐसा किते भी तुसीं नहीं दे सकते कि 5 सिर एक पासे ते 5 सिर एक पासे लग जाण। किसी दे शरीर नूं 10 सिर लगे होण, उस तो बाद कभी किसी ने बंदा ऐसा देखिया जिन्होंने 10 सिर होण। सिर्फ ये गल केवल तो केवल सियाणे विद्वान कहते हैं 10 सिर का अर्थ सी कि उसनूं 10 सिरां जिन्नी मत सी उहदे विच। एडा मतवान सी रावण, 4 वेदां दा ज्ञाता सी। 4 वेद उन्होंने मुजमानी चेते सन। हुण लगा लो भी कितना बड़ा विद्वान पंडित होएगा, क्योंकि रावण वैसे जात दा भी पंडित सी ते राम जिहड़ा सी वो खत्री सी। रावण पंडित सी, 4 वेदां दा ज्ञाता सी। इस करके असीं जदों गल सुणदे ना, जदों रामायण लिखी गई तो उसदे विच ये लिखिया मिलता है कि अंत वेले जदों रावण का वक्त आ गया तो इस वेले राम ने लक्ष्मण नूं भेजिया सी भी जा उसदे कोलों कोई जीवन का तजर्बा लैके आ। ते लक्ष्मण हंकार दा मारिया सी, चारे पासे घूम के सिर वाले पासे खड़ा होया ते पुछदा भी जीवन का कोई तजर्बा दस, हुण ते तू मर जाना है ना। उसने कोई गल नहीं की। ये वापस आ गया अपने भरा नूं कहा, भरा ने पूछा भी तू, रामचंद्र जी ने पूछा भी तू कोई सिक्ख्या नहीं लैके आया, कोई ज्ञान नहीं लैके आया? एडा बड़ा 4 वेदां दा ज्ञाता रावण, कहने उन्हें मैनूं कोई उपदेश नहीं दिता। तो रामायण च लिखिया, पूछया सी रामचंद्र जी ने 10 किस पासे खलोता सी? तू ज्ञान लैण गया सी ना? कहने मैं सिर वाले पासे खलोता सी। कहने नहीं, जे ज्ञान लैना है तो पैरी खड़ के बेनती करनी सी भी रावण मैनू अंत वेले 10 जीवन का तजर्बा की है। फिर कहते ने बाद दे विच जांदा है तो पैर वाले पासे ते जाके बेनती करता है लक्ष्मण, कहते रावण 10 कहते जीवन का तजर्बा की है? कहते बस यही है। कहते मेरा भरा विरोधी सी और तेरा भरा तेरे साथ सी। जदों अपने विरोधी हो जाण ते दशा मेरे वर्गी हुंदी है। इस करके मेरे हारन का कारण भी यह है तो तुहाडे जितन का कारण भी यह है कि तुसी 2 भरा इकट्ठे सी, पर मेरा पैती मेरा भरा सी। जद घर दे विच एक दूजे दे विरोधी पैदा हो जाण, कहंदे वो घर तबाह हो जाते हैं। यही मेरी जिंदगी का तजर्बा, लास्ट तजर्बा मैं तैनूं दस रहा। और ये तां होया क्योंकि मैं हंकार दे विच सी, मैं हंकार नहीं त्यागा अपना। भगत जी कहन लगे, कहने सरब सोयन की लंका होती रावण से अधिकाई। रावण से का अर्थ है रावण वर्गे, अधिकाई का अर्थ है बड़े बलशाली। कहाँ पहो दर बांधे हाथी, कित्थे गए वो दर ते जिहड़े हाथी बने रहंदे सन। एडा बड़ा लाओ लश्कर, एडे हाथी, सोने की लंका, कहते खिन में पही फराई। जदों मौत आई ना, एडी वड्डी सोने की लंका का मालक जिहदे दर ते कितने हाथी घोड़े बने रहंदे सन, इतनियां वस्तुआं का मालक सी, पदार्थां का मालक सी। कहते मौत आंदे सार सारियां चीज़ां खिन दे अंदर पराइयां हो गईयां, अपने कोल ना रहीआं। इस करके भगत जी कहते तू भी क्यों गुमान करना है? हे भाई तू क्यों हंकार करना है? जे रावण वर्गा एक खिंदे विच सारियां चीज़ां पराई हो गई। अज देखो ना, ताई कबीर साहब ने भी जिक्र किया कि 1 लख पूत 1.25 लख नाती ते रावण कर दिया न बाती। चंद सूरज जाके तपत रसोई, वैसंतर वाके कपरे तो ही। अज दीवा जगाण वाला नहीं, कित्थे गया सारा कुछ? तू किहड़ी गल दा गुमान करदा है? भगत जी कहते हैं। फिर अगले वचन कीते, कहते दुर्वासा सो करत ठगोरी, जादव ए फल पाए। कृपा करी जन अपने ऊपर, नाम देओ हर गुण गाए। इत्थे फिर जो अगली गल आखी, कहते दुर्वासा सो करत ठगोरी। दुर्वासा एक तपी सी और बड़ा काले सुभाव वाला सी, छेती ही रुस के शराब दे दिंदा सी। ठगोरी का अर्थ की? दुर्वासा सो करत ठगोरी। ठगोरी का अर्थ होंदा ठगी। मखोल कृष्ण जी के कुल जादव के कुछ मुंडे जिहड़े ना नौजवान लड़के एक बारी इकट्ठे होए,
समुंदर के कंढे द्वारका के पास एक मेले ते इक्को समय सारे इकट्ठे होए। उत्थे दुर्वासा ऋषि जिहड़ा सी वो तप करदा सी। दुर्वासा ऋषि तप करदा सी उत्थे। ते इन्हां लड़कियां ने एक मखौल सुझिया इन्हां नूं भी ये जिहड़ा दुर्वासा ऋषि है इहनूं एक मखौल करदे आ, मजाक। एक अंधाड़िए जे मुंडे नूं आपस दे विच गल करके इस्त्री वाले कपड़े पवा दिते ते नाल एक ढिड दे उत्ते बड़ा जिहा कोला बन दिता, लोहे की बाटी जिन्हों आपां कह सकते बड़ी बाटी। एक बाटी छोटी होंदी, एक बड़ी बाटी बन दी उहदे ढिड दे उत्ते ते वो बाटी पुट्ठी बन के उसनूं जनानियां वाले कपड़े पा के पास लै गए दुर्वासा ऋषि दे। ऋषि साहब तुसीं बड़े तपी लोग हो, बड़ी तपस्या तुहाडी, एक गल असीं पुछना चाहुंदे भी इस इस्त्री दे लड़का होवेगा कि लड़की होवेगी, तुसीं दसो, संतान की होएगी। हुण जद ऋषि नूं पुछया इहदे घर की जमेगा तो दुर्वासा ताड़ गया कि ये मस्करी कर रहे हैं, मखौल कर रहे हैं। गुस्से विच आके शराब दिता कि वो जमेगा जो थोड़ी सारी कुल नूं नाश कर देगा। दुर्वासा सो करत ठगोरी जादव ये फल पाए। शराब तो घबरा के कृष्ण जी की सलाह नाल उस कृष्ण जी कोल आ गए सारे बच्चे। कृष्ण जी कहने सलाह की भी हुण की किया जाए। दुर्वासा ऋषि ने तो सानू शराब दे दिता भी साड़ी सारी कुल का नाश होएगा, तुसीं दसो की करिए। कहते कृष्ण जी ने यह सलाह दी, कहते बाटी नूं पत्थर ते रगड़ते रहो तो इस लोहे का निशान तक भी मिटा दो। जिहड़ी बाटी बनी हुई सी ना उन्होंने किसो कहते पत्थर के उत्ते निशान तक ना रह जाए। निक्का जिहा टोटा रह गया, उन्होंने जाके इदां ही किया, समुंदर विच सुट दिता। ये टोटा जिहड़ा सी एक मच्छी जिहड़ी है वो निगल गई, वो तड़फ रही सी। शिकारी आया शिकार करने वास्ते, तड़फती हुई मच्छी का शिकार कर लिया। शिकार करके घर लै गया। जो मच्छी नूं बनाण लगा, तैयार करन लगा खाण वास्ते, तो उन्होंने पाड़ के वेखदा एक बड़ा तिखा जिहा उहदे विचों वो बाटी का जिहड़ा बचिया होया टुकड़ा सी वो निकलदा है। तो उसदे मन विच सुझिया कि इस नूं क्यों ना अपने तीर दे नाल ला लवां, ये शिकार बहुत वधिया करेगा। क्योंकि शिकारी सी, बिड़ती तो उत्थे टिकी हुई सी शिकार दे उत्ते। कहंदे ने वो जिहड़ा जिथे बाटा घसिया सी उत्थे आपस विच जादवां दी जंग होई। एक दूजे सिर, क्योंकि सिर कंडा सी उत्थे समुंदर के किनारे ते। और एक इस मेले ते कहंदे एक बारी इकट्ठे होए, शराब दिता होया सी कहंदे दुर्वासा ऋषि दा। कहंदे वो आपस विच ही लड़ पए, लड़के एक दूजे दे सिर वड़ दिते, सारे मर गए। जादव आपस विच लड़के समाप्त हो गए। कल्ले कहंदे कृष्ण जी जादवां दी कुल विचों रह गए। बाकी सारे जादव जिहड़े सन जिन्हां ने मखौल कीती सी वो मर के आपस दे विच एक दूजे नाल लड़ के मर गए ने। और उसका कारण भी ये सी क्योंकि मेले ते फिर दोबारा इकट्ठे होए सन सारे जादव, तो इन्हां ने शराब पी लई। शराब पी के आपस दे विच लड़ पए। गल इतनी वध गई कि लड़ाई दे विच जिहड़ा सरकंडा उसनूं पुट के सारे एक दूजे दे नाल जदों उस दे नाल लड़ाइयां होईयां तो एक दूजे नूं मार दिता इन्होंने। हुण दूजे पासे कृष्ण जी सब कुछ छड़ा के चले जाते जंगल दे विच। ते जदों जंगल विच जांदे ने तो उत्थे कहंदे जंगल विच जाके आराम कर रहे हैं। एक लत्त दे उत्ते दूजी लत्त रखी है, विश्राम कर रहे हैं। ये जिहड़ा शिकारी सी जिसने समुंदर विचों मच्छी फड़ी सी, ये शिकार करन वास्ते गया जंगल विच। दूरों वेख्या कहंदे सामने लगदा है हिरन बैठा होया है, उहदी अख है, निशाना बना लिया। कहंदे कृष्ण जी दे पैर दे विच कहंदे पदम सी, वो दूरों चमक रहा सी। तो उस शिकारी ने कहंदे ने निशाना बनाया। तो इस तरह जो है कृष्ण जी नूं भी, क्योंकि उन्हां दे कुल दा आखिरले चिराग सी जादव कुल दा, ते उसनूं भी मार दिता। भगत नामदेव जी ने इस गाथा नूं
इस शब्द के राਹੀਂ दर्शाया। कहते दुर्वासा सो करत ठगोरी जादव ये फल पाए। कहते जादवा नूं उसका ये फल मिलिया, क्योंकि जादवां दी कुल का अंतला दीवा भी बुझ गया कृष्ण जी के रूप दे विच। इस करके भगत जी कहन लगे, कहते ने सो अहंकार किसी चीज़ का भी नहीं करना चाहिए, ना अपनी जमानी का, क्योंकि इत्थे जमानी के बारे दर्शा रहे हैं। क्योंकि जमानी के नशे विच बच्चों ने ऐसा किया। जमानी का अहंकार, रावण का राजपाट का अहंकार, सोने की लंका का अहंकार, और जो कौरवां का जमीन का अहंकार भी साढ़े कोल इतनी जमीन है तो असीं एक सूई जिन्नी थां नहीं देनी, उसके पिछे सारा कारण बनया। ये सारा अहंकार करके इतना कुछ होया। भगत जी इस शब्द विच ये दर्शाना चाहते हैं कि भाई अहंकार कितना को माड़ा है। अहंकार कितना माड़ा है, जिसने जादव कुल खत्म कर दी, रावण वर्गे खत्म कर दिते, कौरवां दे विचों दुर्योधन वर्गे खत्म कर दिते। अहंकार इतना को माड़ा है। हमरो करता राम स्नेही काहे रे नर गर्व करत हो विनस जाए झूठी देही। ये नासवंत देही ने विनस जाना है। फिर इसका अहंकार क्यों, ना वस्तुओं का अहंकार क्यों, चीज़ों का अहंकार क्यों। इस करके भगत जी कहते कृपा करी जन अपने ऊपर नाम देव हर गुण गाए। आखन लगे अपने दास नामदेव उत्ते परमात्मा ने कृपा की। नामदेव ने मान त्याग के परमात्मा के गुण गाने आरंभ किए ने। पाओ कि नामदेव तो परमात्मा के गुण गाउंदा है, परमात्मा की सिफसला करता है। सो इस पावन शब्द के विच अहंकार चाहे किसी की भी चीज़ का होवे, ये दर्शाने का यतन किया वो माड़ा होंदा है। इस करके कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, किसी भी गल का गुमान नहीं करना चाहिए। अहंकारी मनुख नूं अहंकार के बदले उसनूं फल भोगने ही पैंदे हन। एक दुख तो एक भुख उसके जीवन च बधी चली जाती है, तो ये दो चीज़ां एक दिन उसकी जिंदगी नूं बर्बाद कर देंदियां हन। इस करके हौमे मेरी त्याग के हंकार का मार्ग छड्ड के असी मस्कीनी मार्ग, निमरता वाला मार्ग अपनाइए, ताकि साडा जीवन सफला होवे और किसी गल का सानू गुमान ना होवे। असी सहज सुभाव अपनी जिंदगी नूं सफली कर सकांगे जदों ये निमरता वाला मार्ग असी चुन लवांगे। सतगुर कृपा करन, सरबत माई भाई संगतां दे सिर ते मिहर दत्त रखन ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਬਖਸ਼ੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਮਾਨ, ਅਹੰਕਾਰ, ਹਉਮੈ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਈਏ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਤੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਵ ਕਰੀਏ। ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ, ਮੁਝ ਮੈਂ ਰਹਾ ਨੂੰ ਹੂੰ, ਆਪਾ ਪਰ ਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਜਤ ਦੇਖਾਂ तत तू। इतने वचन प्रवान। सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। फतेह जी सान करो। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।